السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت خواجہ عبدالباقی باقی باللہ دہلوی، آباء و اجداد۔ حضرت خواجہ محمد عبدالباقی باللہ دہلوی کے آباؤں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت قاضی عبدالسلام سمرقندی قریشی ہی کا ذکر ملتا ہے، جو اپنے دور کے صاحبانوں جدہ حال اور باب فضل و کمال میں منفرد مقام رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کا اصل نام رضی الدین احمد بن شیخ عبدالسلام ملتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نے ظاہری علوم کی تحصیل مولانا صادق رحمۃ اللہ علیہ حلوائی سے کابل میں ہی کی، جو اپنے دور کے علماء کرام میں علم و فضل کی بدولت ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ اپنے استاد محترم کی رفاقت میں کابل سے مادر النہر میں بھی گئے، جہاں تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے علم و فضل میں بلند مقام حاصل کیا۔ مادر النہر کے قیام کے دوران ہی آپ کو درویشی اور فقیری کا شوق پیدا ہوا، جس میں آپ کے استاد مکرم کی تربیت کا خاص طور پر اثر تھا۔ اسی سلسلے میں مادر النہر بلخ، بدخشاں، سمرقند، لاہور اور دوسرے مقامات کا سفر کیا اور بہت سے مشائخ کبار کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن شیخ کامل سے ملاقات نہ ہو سکی۔ 999 میں کشمیر میں وارد ہوئے اور حضرت شیخ بابا والی نقشبندی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاں کچھ سکون میسر آیا، لیکن ابھی آپ اپنا مدعا بھی ظاہر نہ کر سکے تھے کہ حضرت شیخ 15 صفر میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ چنانچہ پھر خواجہ محمد باقی باللہ پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو پہلے سے موجود تھی، لیکن جلد ہی حضرت خواجہ مکندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رسائی حاصل ہوئی اور اپنا مدعا عرض کیا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ کی بیعت سے نواز کر اپنی خاص عنایات فرمائیں۔ 3 دن اور 3 رات اپنی صحبت میں رکھا اور اعلیٰ و رافع مقام باطنیہ سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا شجرہ و طریقت نقشبندیہ ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ مرید خواجہ محمد رحمۃ اللہ علیہ، مرید خواجہ پیر درویش رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ مرشد کامل کے حکم کے مطابق حضرت خواجہ محمد عبدالباقی المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے۔ 1 سال تک لاہور میں قیام فرمایا، جہاں سے بہت سے علماء آپ کے حلقہ اثر میں شامل ہو گئے۔ لاہور میں قیام فرمایا، جہاں سے بہت علماء صوفیہ آپ کے حلقہ اثر میں شامل ہوئے۔ لاہور میں قیام کے بعد سیر و سیاحت کرتے ہوئے دہلی پہنچے اور قلعہ فیروزی میں مستقل سکونت اختیار کر کے تبلیغ و اشاعت دین و مسلک میں ہمہ تن مصروف ہو گئے اور آخرت اسی جگہ کو رونق بخشی اور خلق کثیر کو راہ ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت کی کرامات تذکروں میں آپ کے بے شمار کرامات تحریر ہیں۔ تبرک کے طور پر 2 درج کی جاتی ہیں۔ ایک بڑھیا کا 3-4 سال کا بچہ فیروز آباد کے قلعے کی دیوار سے گر پڑا۔ دیوار کے نیچے سخت پتھر کے فرش کی وجہ سے اس کے کانوں سے خون بہنے لگا اور سانس بند ہو گیا۔ گریہ زاری کرتے ہوئے ماں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت کی عادت تھی کہ اپنی توجہ و تصرف کو بہت چھپایا کرتے تھے۔ آپ نے طب کی ایک کتاب طلب کی اور فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا مرے گا نہیں۔ حاضرین حیران ہوئے کہ کون سی ایسی کتاب ہے جو یہ بات بتا رہی ہے۔ آپ ایک لحظہ خاموش رہے۔ قریب الموت لڑکا اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ لوگ حیران ہو گئے اور بڑھیا حضرت خواجہ کو دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ دوسری کرامت، ایک دفعہ ایک فوجی افسر
نے हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला की एक हमसाये पर जुल्म किया। आप फौजी अफसर की हरकत देखकर बहुत बेकरार हुए और उसे नसीहत की कि ख्वाह किसी को दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन वो बदबख्त बाज ना आया। हजरत को उस जुल्म पर नहायत रहम आया। आपने अफसर को मुखातब करते हुए फरमाया कि हमारे हजरत ख्वाजगान बहुत गैरतमंद हैं, ये उन्हीं के पड़ोस में रहता है, खबरदार रहना। 2-3 दिन ही गुजर रहे थे कि फौजी अफसर एक चोर के खून से के मुकदमे में गिरफ्तार होकर कत्ल हुआ। हजरत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला ने मरीदैन की रूहानी तरबियत के साथ साथ सिलसिला तसनीफ़ व तालीफ़ को भी जारी रखा। आप फारसी के शायर और साबे सलूक नसनगार थे। आपके मज़ामीन नज़्म व नस्ब पर मुश्तमिल कुलियात बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के नाम से शाया हो चुके हैं, जिसमें आपके मलफूज़ात के अलावा वो 87 मकतूबात, 2 रसाइल और मजमूआ कलाम है। इस कुलियात को मलकदीन मोहम्मद एंड सन्स लाहौर से शाया किया। नहायत ही ज़रूरी है ये ख़ानदानी माहौल का असर था कि चंद ही सालों में इल्म ज़ाहरी बातनी से मुशर्रफ हुए। अवाइल उम्र में ही खल्क़े कसीर ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल करना शुरू कर दिया। छोटी उम्र में ही आपने इस कदर रूहानी इस्तात हासिल कर ली थी कि एक रोज़ हज़रत शाह कमाल ने अपने जवान साल पोते पर मुशफ़िकाना नज़र डालते हुए फरमाया, फर्जंदे मन, ख्याल था कि तुझे कुछ दिन देखकर मसरूर हो लूँ, लेकिन तूने इस मामले में नहायत ही उजरत से काम लिया है, इसलिए तुझे अभी खरक़ाए खिलाफत अता कर रहा हूँ, मुबारक हो। चुनांचे इस तकरीब सईद के मौका पर हज़रत शाह कमाल ने अपना अमामा और असा आप रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया, जिससे आपको नहायत गौसिया हासिल हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह का शजरा तरीक़त बदीन हज़रत गौसे आज़म से होता हुआ अमामुल औलिया हज़रत अली से जा मिलता है। हज़रत शाह सिकंदर कादर मरीद खलीफा हज़रत शाह कमाल, हज़रत फसील मरीद हज़रत सईद गदा रहमान सानी मुरीद हज़रत सैयद शमसुद्दीन का सिलसिला आगे से चलता हुआ सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है। आपका हुलिया मुबारक बहुत हद तक अपने जद अमजद हज़रत शाह कमाल केथरी से मुशाबे था। आपके फरजंद हज़रत शाह गद्दार रहमान अब्बास रहमतुल्लाह का हुलिया मुबारक इस तरह बयान करते हैं कि हज़रत रास्त कामत म्याना का थे, जिस्म अतहर भरा हुआ था, पेशानी फराह कुशादा आबरू बीनी, दराज बुलंद बड़ी बड़ी आंखें, चेहरा मुबारक पुरनूर, दाढ़ी मुबारक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोई मुबारक नहायत मलाइम बारीक और चमकदार थे। कुशादा सीना नाखन नहायत साफ और आबदार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का लिबास नहायत सादा लेकिन पुर शिकवा होता था। जो लिबास भी ज़ेब तन करते नहायत मौजूम होता। आपका अमामा सब्ज़ या आसमानी रंग का होता था। तहबंद और खुली कमीज पहनते थे। लिबास हर वक्त पाक साफ रखते जिससे खुशबू आती थी। आपकी तालीम व तरबियत और परवरिश याफ्ताब शरीयत व मख्ताब तरीक़त हज़रत शाह कमाल की आगोश मुबारक में हुई, इसलिए वली कामल की शख्सियत के लिए जिन अनासर का यकजा होना ज़रूरी था वो सब आप में ना सिर्फ बदरजाए अता मौजूद थे, बल्कि मुअस्सर औलियाए कराम में आपकी इम्तियाजी हैसियत को नुमायाँ करते थे। चुनांचे यही वजह थी कि आपके इल्म व फजल से खल्क़े कसीर ने इस्तिफ़ादा किया और राह मुस्तकीम को इख्तियार किया। आपके आईना सीरत में तक़वा तवक्कुल, इस्तग़ा और सखावत के जौहर नुमायाँ नज़र आते हैं। दुनियावी जाहू जलाल से नफ़रत करते, इत्तबाए शरीयत के सिलसिले में सानी ना रखते थे। अहयाए दीन और तरवीज सिलसिला कादरिया में तमाम उम्र कोशां रहे। आप सीरत व करदार में अपने जद्द अमजद हज़रत गौसुल आज़मी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मुशाबहत रखते थे। दरिया दली और फयाजी का ये आलम था कि जो कुछ भी आता उसी वक्त हाजतमंदों में तकसीम कर देते और जद अमजद के इस कौल पर अमल करते कि अगर मुझे सारी दुनिया की दौलत हासिल हो जाए तो शाम तक एक पाई भी मेरे पास ना रहे। आपका हर कौल कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक होता था। आपने बाकायदा मुताबिक ज़िंदगी बसर की, जिससे साबित होता था कि आपने तसव्वुफ़ की रहबानियत की अलामत के बजाय दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला तक रसाई का एक मुअस्सर ज़रिया करार दिया।
बरसगीर में अहमद मुर्शद कामल के हुक्म के मुताबिक हजरत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल बाकी और मारूफ बा हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला सफ़र की सौकतें बर्दाश्त करते हुए बर्र सगीर पाको हिंद में दाखिल हुए। एक साल तक लाहौर में क़याम फरमाया, जहाँ से बहुत उलमाए सूफिया आपकी हल्काए असर में शामिल हो गए। लाहौर में क़याम के बाद सैर व सयाहत करते हुए दिल्ली पहुँचे और किला फ़िरोज़ी में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करके तबलीग व अशात दीन व मसलक में हमा तन मसरूफ़ हो गए और तादम आखिरत उसी जगह को रौनक बख्शी और खल्क़े कसीर को राह हदायत से सरफराज फरमाया। तलाशे मुर्शद। मादरुन नहर के क़याम के दौरान ही आप रहमतुल्लाह अलैह को दरवेश और फ़कीरी का शौक़ पैदा हुआ, जिसमें आपके उस्ताद मुकर्रम की तरबियत का ख़ास तौर पर असर था। इसी सिलसिले में मादरुन नहर बल्ख बदख्शां मशाइख कबार की खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन शेख कामल से मुलाकात ना हो सकी। 999 हिजरी में कश्मीर में वारद हुए और हज़रत शेख बाबा वाली नक्शबंदी की खिदमत में हाजिर हुए, जहाँ कुछ सुकून मैसर आया। मामूलात। हज़रत बाकी बिल्ला हमेशा बावजू रहते और दूसरों को भी ऐसा ही करने को कहते। नमाज ईशा के बाद हुजरे में चले जाते और मराकबे में मशगूल हो जाते। जब जिस्मानी अज़ा पर नींद का गलबा महसूस करते तो दोबारा वज़ू करके 2 रकत नफल पढ़ने के बाद मुराकबे में चले जाते। अक्सर उसी तरह रात गुजर जाती। तस्लीम और रज़ा और ज़ाहिद व तक़वा में अपना आसानी ना रखते थे। खुदाम को भी इबादत और रियाजत और तवक्कुल व क़नाअत के इख्तियार करने की हमेशा तलक़ीन करते थे। हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेरी हिंदुस्तान के अकाबरुल औलिया अल्लाह में से हैं। हज़रत ख्वाजा शकरगंज फरीदुद्दीन कि मुमताज़ खलीफा जो ख्वाहर ज़ादगी की और दामादी का रिश्ता भी रखते हैं, जिनके मुतल्लिक़ हज़रत ख्वाजा शकरगंज फरमाया करते थे कि मेरे दिल का इल्म अली अहमद साबर को मिला है और सीने का इल्म शेख निज़ामुद्दीन को मिला है।